Hello boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here and very important video for all of you foundation students, how to write law answers in exams. Now let me tell you first of all, this problem is not only faced by the foundation students but also by the inter students. I mentor more than 5,000 students every year for regarding the CA Inter, CS Executive and CMA Inter. What I find is that almost 40 to 50% students even at the inter level face this difficulty of writing answers properly. So let me tell you, if you do not get it right at the foundation level, you may find it trouble at inter level and final level also. So please make sure that you are watching this video till last, and after watching my video you are giving the tests which I am regularly taking and also practicing the required amount of case studies. Now let us come to the point, but before coming to this video, my small information from my institute is that in the coming week our new live online batches are going to start for the foundation level for CA, CMA, CS, EET and for CA foundation also. So make sure that your friends and relatives, whoever is seeking information and want to take tuition from us, and they were wondering when the new batches will start, you just pass on the information that yes, the new batches are indeed starting from the coming week itself. Now let us come to the point. Now first of all, let me tell you what variety of questions do we find in the foundation law paper. There are mainly two varieties of questions that we find in foundation law paper. The first variety of the question is direct question and the second variety is case study. अब जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर. ऑल दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यू गाइज आर वेरी स्मार्ट इनफ टू हैंडल एंड टैकल एंड आंसर, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वैसे ही आंसर करना है ना जैसे आप +2 लेवल पर आंसर करते थे, 11-12 में जैसा आप आंसर करते थे. जैसे अगर हम आपसे पूछे डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया, just write the provisions that you have studied according to section 2 clause D of the Indian Contract Act 1872 consideration. फिर ऐसे करके लिखना चालू कर दीजिए डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done something or abstained from doing something, does something or abstains from doing something, promises to do something or abstains from doing something, such an act or abstinence is called consideration for the promise. मतलब लिख दीजिएगा जो मैंने डेफिनेशन बोला, वो आपको डेफिनेशन आपको भी याद होगा या पढ़ा हुआ होगा तो वो डेफिनेशन लिख देना है. फिर आपको लिख देना है नेक्स्ट लाइन से फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, टन जो 4-5 फीचर है, 6-7 फीचर है, वो लिख देना है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, बहुत आसान है. हिंदी में अगर हम बोले खुला सांड की तरह बस लिख देना है जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे लिखते आए हैं. सो द मेन कंसर्न ऑफ एवरी स्टूडेंट इज हाउ डू वी अटेम्प्ट द केस स्टडी, हाउ डू वी राइट द केस स्टडी. उस चीज को मैं आपको एड्रेस करने वाला हूं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर. मैं आपके लिए 2 केस स्टडी जो है वो डिस्कस करने वाला हूं. एग्जाम में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है मैं वो भी आपको सिखाने वाला हूं. ऑब्वियस बात है मैं डिक्टेशन नहीं करूंगा, बट एग्जैक्ट आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको बताऊंगा. और क्योंकि डिक्टेशन बैठ करके आप नहीं लेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही दोनों आंसर जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं वो मैंने लिख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक में आप जाएंगे और वहां पर आपको दोनों का पूरा सॉल्यूशन जिस प्रकार एग्जाम लिखना है वैसे मिल जाएगा. अब कुछ नालायक बच्चे, बेशरम बच्चे अभी वीडियो को क्लोज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और खाली वहां से देख लेंगे. ऐसा नहीं होता, आपको पहले स्टाइल सीखना पड़ेगा, स्टाइल ऑफ आंसरिंग. सो डोंट बी अ फूल एंड वॉच द वीडियो, एंटायर वीडियो टिल लास्ट. अच्छा सर कितना मार्क का केस स्टडी आता है, कितना मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. देखो जो लॉ का पेपर है उसमें 40 to 50% डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, 40 to 50% आपका केस स्टडी रहता है. मतलब आप 50-50 पकड़ करके चल लो. जो 60 मार्क्स का लॉ रहेगा उसमें लगभग 30 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का केस स्टडी रहेगा. ठीक है, अभी मैं जो आपके साथ 2 केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं वो दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है. चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ता हूं, फिर मैं उसका आंसर कैसे लिखना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा. देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, X agrees to become an assistant. ठीक है, क्वेश्चन है X असिस्टेंट बनने को रेडी हुआ फॉर 2 years. ठीक है, टू Y. परफेक्ट. सो X agrees to become assistant for 2 years to Y. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. Was a practicing chartered accountant at Jodhpur.
और वाई जो है वो जोधपुर में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, चलेगा। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट X will not practice as chartered accountant on his own account within 20 किलोमीटर of office of Y at जोधपुर। यहां तक क्वेश्चन समझ आया। X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, Y अपना सीए प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जोधपुर में, और X उसके अंडर असिस्टेंट बनकर के रहेगा 2 साल तक। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि X उस दौरान जो है वो अपना खुद का कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, बिकॉज X विल बी असिस्टेंट ऑफ Y, सो X इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था भाई, ध्यान रहे, लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ, X ने असिस्टेंटशिप छोड़ दिया Y का एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन हिज ओन अकाउंट विद इन द सेड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर। अब यहां पर पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए X सही है कि गलत है। X ने वादा किया था कि मेरे को रख लो अपने यहां पर असिस्टेंट, मैं 2 साल तक तुम्हारे 20 किलोमीटर के आसपास जो है 2 साल तक अपना खुद का प्रैक्टिस चालू नहीं करूंगा, लेकिन उसने 1 साल के अंदर ही 20 किलोमीटर के अंदर ही चालू कर दिया। बताइए X सही है कि गलत है। आंसर इज गलत है। X ने गलती किया, X ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, बट आप कोई भी केस स्टडी का आंसर X इज रॉन्ग, वाई शुड सीओ, ये सब आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सीधा आप कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं। राइट रॉन्ग शुरू में आप नहीं लिख सकते, आपको ये ट्रू फॉल्स नहीं पूछा गया, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। तो हाउ डू वी राइट द केस स्टडी का आंसर? ध्यान से सुनिएगा, 3 पैराग्राफ में आपको केस स्टडी का आंसर लिखना है। पहला पैराग्राफ का नाम रहेगा रिलेटेड प्रोविजंस, सेकंड पैरा का नाम रहेगा फैक्ट्स एंड एनालिसिस, तीसरा पैराग्राफ का नाम रहेगा कंक्लूजन। रिलेटेड प्रोविजंस यानी इस केस से रिलेटेड कानून क्या बोलता है, रिलेटेड प्रोविजन इस केस से रिलेटेड कानून क्या बोलता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी ना लिख देना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस विषय में क्या बोलता है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट्स एंड एनालिसिस, यानी सेकंड पैराग्राफ सबसे आसान है, इस क्वेश्चन में जो हुआ है वही घुमा फिरा करके आपको भी बताना है सेकंड पैराग्राफ में, लेकिन फर्स्ट पैरा से कोरिलेट करके क्या लिखना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और तीसरा में कंक्लूजन कि कौन सही है कौन गलत है। रिलेटेड प्रोविजन कानून क्या बोलता है, फैक्ट्स एंड एनालिसिस ये क्वेश्चन क्या बोलता है और हमारा एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन फाइनल आंसर। जैसे भी इस पैराग्राफ का रिलेटेड प्रोविजन क्या होगा आप चालू करिएगा, हाँ लिखना है रिलेटेड प्रोविजन, आप लिखिएगा रिलेटेड प्रोविजन, फिर डाइस देकर के लिखिए अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस। सेक्शन नंबर अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना सारा सेक्शन है कि आप जो है अगर सेक्शन नंबर यहां पर नहीं लिख सक रहे हैं तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा एनी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड is against public policy and void, full stop. However, it must be noted that any agreement in restraint of service or partial restraint in trade is a valid agreement and not opposed to public policy, full stop. Only absolute restraint in trade agreements are void and opposed to public policy, full stop. क्लियर कट आपने देखे रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो लिख दिया। क्वालिटी आंसर लिखना है आपको, ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिलेटेड प्रोविजन। फिर आप आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में फैक्ट्स एंड एनालिसिस हेडिंग दीजिए और डैश देकर के लिखना चालू करिए। इन द गिवन केस स्टडी एक्स एंटर्ड एन एग्रीमेंट विथ वाई इन विच ही एग्रीड टू बिकम एन असिस्टेंट फॉर 2 years, full stop. It was also agreed that X will not practice within 20 kilometers of Jodhpur in which Y is already practicing as a chartered accountant, full stop. As per the given case study, X within 1 year only started practicing within those 20 kilometers, full stop. कंटिन्यू करके फिर लिखिएगा उसी पैराग्राफ में, this agreement between X and Y is clearly not an absolute restrainment of trade, rather it's an agreement related to restrainment in service or partial restrainment, full stop. Full stop के बाद फिर लिखिएगा this agreement
is not opposed to public policy and is a valid contract. Full stop. फिर आप आ जाइए अपना कंक्लूजन में. Thus, from the above discussions, we conclude that the contract between X and Y is a valid contract, and because X has not abided by the terms of the contract, so he has breached the contract. Full stop. Y therefore has every right to sue X. Full stop. खत्म. ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पूरा रिलेटेड प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, कंक्लूजन. अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, सच सच बताइए. डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप खुला सांड की तरह लिख देंगे. अब मैं आपको बताता हूं केस स्टडी कैसे और सिंपल हो सकता है. आप केस को पढ़ो और केस को पढ़ने के बाद ये सोचो कि इसका रिलेटेड प्रोविजन क्या है, किस मामले पर है. जैसे आप ये केस को पढ़े, आपको मामला समझ में आ गया, ये रेस्ट्रेनमेंट ऑफ ट्रेड वाला मामला है, तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो रहता है केस स्टडी का, रिलेटेड प्रोविजन, यार वो तो पूरा का पूरा प्रोविजन ही हो गया, जस्ट लाइक अ डायरेक्ट क्वेश्चन. तो बल्कि केस स्टडी में तो आपका अच्छा खासा जो है वो कंटेंट बन जाएगा. जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो डायरेक्ट प्रोविजन की तरह ट्रीट करो. फिर सेकंड पैराग्राफ में मोटा मोटी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपको घुमा फिरा करके लिख देना, थोड़ा एनालिसिस के साथ, और लास्ट में कंक्लूजन जो आपके अंदर मचल रहा होगा निकलने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है. अब बच्चे पूछेंगे सर लेंथ ऑफ द आंसर कितना होना चाहिए. देखो 4 नंबर का आता है जनरली केस स्टडी. लेंथ ऑफ द आंसर ऐसा कुछ नहीं होता. क्वालिटी वाइज अगर जैसे मैंने जितना बताया आप उतना लिखोगे, ऑलमोस्ट एक पन्ना अट जाएगा, 75% पेज और 100% ऑफ द पेज भर जाएगा. ठीक है. और अगर फिर भी आपको मेरे से लेंथ जानना है तो लगभग 1 पेज, अप्रॉक्स 1 पेज. चलिए, जो मैंने आपको बोला ये पूरा का पूरा आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगा. आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं. अब फिर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा 3 पैराग्राफ का मैंने दोनों आंसर 3 पैराग्राफ में जिस प्रकार एग्जाम लिखना है वैसे ही आपको दे रखा. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ, 2 पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. एक पार्टी बोला वो मशीन खरीदेगा, दूसरा पार्टी बोला वो मशीन बेचेगा. ठीक है बात. 2 पार्टी मशीन खरीदने बेचने का सौदा किया. दूसरा पार्टी मशीन नहीं बेच सका क्योंकि उसके यहां पर लेबर स्ट्राइक हो गया था, इसलिए वो मशीन नहीं बेच सका. पहले यहां पर बताइए क्या दूसरा पार्टी का गलती है कि फर्स्ट पार्टी का गलती है? ब्रीच हुआ, बताइए, सोचिए. अरे 100% ब्रीच हुआ, दूसरा पार्टी ने ब्रीच किया. सर उसके यहां पर तो लेबर स्ट्राइक हो गया था. सर वो कैसे इम्पॉसिबल हो जाता ना. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, लेबर स्ट्राइक्स, ये सब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं आता, ध्यान में रहे. तो बिल्कुल देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरा पार्टी जो मशीन नहीं बेच सका समय पर, ये सेकंड पार्टी ने ब्रीच किया. अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं. इस केस में फर्स्ट पार्टी जो है वो अग्रीव्ड हो गया क्योंकि सेकंड पार्टी ने फुलफिल नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट. अब मशीन का दाम क्या हुआ ना, बढ़ गया तब तक. तो बिल्कुल जितना मशीन का दाम बढ़ गया तो फर्स्ट पार्टी को तो अब मशीन खरीदना ही है, तो वो तो बढ़ा हुआ दाम पे खरीदेगा. जब सेकंड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 21.5 लाख में हुआ था, 21.5 लाख में. लेकिन वो तो बेचा नहीं सेकंड पार्टी, तो बोल दिया लेबर स्ट्राइक नहीं बेचेंगे. तब तक मशीन का दाम 22.75 हो गया. तो फर्स्ट पार्टी को तो बाजार से ज्यादा में खरीदना पड़ेगा, 22.75. तो ये जो एक्स्ट्रा 1.25 लाख लग रहा है फर्स्ट पार्टी का, वो ऑर्डिनरी डैमेज है जो सेकंड पार्टी से क्लेम कर सकता है. लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है. फर्स्ट पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि सेकंड पार्टी से वो मशीन खरीदेगा और थर्ड को बेचेगा. अब सेकंड से तो खरीद नहीं सका तो थर्ड को बेच नहीं सका. तो थर्ड पार्टी ने ना फर्स्ट पार्टी से ना स्यू करके डैमेजेस वगैरह वसूल कर लिया. अब फर्स्ट पार्टी को बेचारा को थर्ड पार्टी को चुकाना पड़ा बिकॉज फर्स्ट पार्टी फेल्ड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट दैट इट एंटर्ड विद द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी थोड़ी ना सुनेगा फर्स्ट पार्टी का ये पहलू कि नहीं नहीं देखो वो नहीं दिया, थर्ड पार्टी को उससे क्या मतलब है. तो फर्स्ट पार्टी अब सेकंड पार्टी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, देख तेरे कारण मेरे को थर्ड पार्टी को डैमेज देना पड़ा, तुम वो भी दे मेरे को, स्पेशल डैमेज भी दे. बताइए क्या फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से ऑर्डिनरी डैमेज तो लेगा डिफरेंस प्राइस का, क्या वो स्पेशल डैमेज ले सकता है? आंसर इज नहीं ले सकता क्योंकि उसने सेकंड पार्टी को ये सब शुरू में बताया नहीं था. स्पेशल डैमेज का कंडीशन क्या होता है, वाकई में स्पेशल लॉस हुआ हो, हाँ हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से डिस्क्लोज नहीं था बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी. तो फर्स्ट पार्टी इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी स्पेशल डैमेज. इसका आंसर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 पैराग्राफ में दे रखा है, जरूर से देखिए. अब आप लोग जो है एग्जाम देने के लिए सक्षम है और अब आप जरूर जो है वो एग्जाम भी दीजिएगा. ठीक है. एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं लगभग रात के 2 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कल सुबह तक
यानी 16th तक, 16 मई लगभग 8 साढ़े 8 के बीच में ये जो है ये अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा और फिर पूरा दिन रहेगा आपके पास 16 मई का। 10 साढ़े 10 बजे मैं आपको क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग में दे दूंगा यूट्यूब कम्युनिटी टैब में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 8 बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, उसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, थोड़ा सा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलता है, और फिर इसी प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी रहेगा, ठीक है। और सीएसईटी वाला लोग का तो पूरा एमसीक्यू रहेगा, सीएसईएमए वाला लोग को एमसीक्यू और डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी सब रहेगा। तो 16 मई को 8 साढ़े 8 बजे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और 10 साढ़े 10 बजे मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में जाकर के ये जो क्वेश्चन पेपर है अपलोड कर दूंगा आपके लिए। वो क्वेश्चन पेपर आप पूरा दिन भर लीजिए, सॉल्व करिए। संडे शाम को 5 बजे तक, आई रिपीट, संडे शाम को 5 बजे तक आपको ये आंसर पेपर कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं संडे को ही वापस से आपसे मिलूंगा रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशंस जो है वो पूरा डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पेपर का। मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप लोग जो है अच्छे से पूरा मेहनत करिए, वीडियोस पूरा अच्छे से देखिए, टेस्ट पक्का से अटेम्प्ट करना। अच्छा, 2 प्रकार के बच्चे रहेंगे। एक प्रकार के बच्चे समझ लिए केस स्टडी कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूरा आंसर्स को देखेंगे, कॉपी में फेयर कर लेंगे, टेस्ट देंगे। दूसरे प्रकार के बच्चे बोलेंगे हमसे इतना झमेला नहीं होता, और वो क्या बोलेंगे, नहीं आता नहीं आता, लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता, नहीं आता, लिखना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, बस वो यही रट्टा मारते रहेंगे फाइनल लेवल तक। तो आप सेकंड में मत आइए, सेकंड वैरायटी वाले बच्चों में, फर्स्ट वैरायटी वाले बच्चों में आइए। फर्स्ट वैरायटी वाला बच्चा क्या करेगा, ये वीडियो को पूरा शिद्दत से देखेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड करेगा पूरा 2 आंसर्स को, उसको फिर अपना कॉपी में फेयर करेगा, टेस्ट देगा। जब टेस्ट दोगे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक बार हाथ जाम होगा, बट एक बार हाथ खुल गया, ऐसा 2-3 तो टेस्ट दे दिए, केस स्टडी लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, पहला टेस्ट में बिल्कुल दिक्कत आ सकता है, बट जैसे जैसे 2-4 आंसर लिख दोगे, दिक्कत जो है वो दूर होते जाएगा। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट, सीधा बुक खोल करके रनिंग नोट्स लिखना वो प्रैक्टिस मत करो, इट विल नेवर हेल्प यू, वो आपका लीगल प्रोविजंस को और खराब कर देगा। केस स्टडीज लिखना प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे मैं टेस्ट लेते जाऊंगा वैसे वैसे टेस्ट देते जाओ, जीत आपकी होगी। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके दोस्तों, बाय 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 बाय।